حمزاد لاسٹ ایپیسوڈ۔ مگر حمزاد اپنی تمام پرسرار قوتوں کو بروئے کار لا کر بھی یہ معلوم نہ کر سکا کہ مے پارا مجھ سے کیا آخری انتقام لینے والی ہے۔ مجھے امید بھی یہی تھی کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی مے پارا کے سلسلے میں حمزاد ہمیشہ ناکام ہی ثابت ہوا تھا۔ حمزاد کی ناکامی کے بعد تو میں نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا اور سوچا کہ اب جو بھی ہو، تقدیر جس نادیدہ حملے کو کسی صورت روکا ہی نہ جا سکتا ہو، اس کے بارے میں زیادہ سوچ و بچار لا حاصل تھا۔ اسی ذہنی کشمکش سے نکل کر ایک بار پھر تبدیلی جسم کے لیے بے چین ہو گیا۔ دہلی کی ایک معزز ہستی خان صاحب عظمت اللہ میرے معتقدین میں سے شامل تھے۔ انہی کے ساتھ ان کا پورا خاندان میرا مرید تھا۔ عنایت اللہ انہی کا لڑکا تھا۔ عنایت کی جسمانی صحت قابل رشک تھی اور چہرے مہرے میں بھی اس کا جواب نہیں تھا۔ جوانی جیسے اس پر ٹوٹ کر پڑی تھی۔ چوڑا چکلا سینہ، ابرے ابرے بازو اور مضبوط ہاتھ پیر۔ اس کی عمر شکل سے 16-17 کے درمیان تھی۔ اس کے اوپری ہونٹ پر ہلکے ہلکے روئیں کا آغاز ہوا تھا۔ عنایت بھی میرے دوسرے مریدوں کی طرح مجھ سے انتہائی عقیدت رکھتا تھا۔ اس کی صحت اور جوانی یقیناً قابل رشک تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نے تبدیلی جسم کے بارے میں سوچا تو عنایت کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم گیا۔ اس کا نوخیزی جسم میرے ناآسودہ خواہشوں کی تسکین کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا تھا۔ اب میرے سامنے مسئلہ اپنی 40 دن کی غیر حاضری کا تھا، کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب میری محفل گرم نہ ہوتی۔ شام ہوتے ہی میرے مکان پر عقیدت مندوں کا ہجوم لگنے لگتا، کیونکہ لوگوں سے ملنے کے وقت میں نے ہی مقرر کیا تھا۔ دہلی کے علاوہ دور دراز علاقوں سے بھی لوگ آ کر میرے حلقہ ارادات میں شامل ہوتے۔ میں اس بات پر کافی غور و خوض کے بعد ایک شام برسرِ محفل کہا، اب ہمارے جسم مجاہدوں اور ریاضتوں کی سبب کا خاصا ضعیف ہو گیا ہے۔ اب اس کے لیے نئی قوت و توانائی کی ضرورت ہے۔ ہم 40 دن کے لیے دہلی سے رخصت ہو رہے ہیں، اور جب ہم لوٹیں گے تو تم لوگ ہماری کمر جھکی ہوئی نہیں پاؤ گے۔ میری بات سن کر وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی کو حیرت نہیں ہوئی۔ انہیں میری باتوں پر بھرپور یقین تھا اور بھروسہ تھا۔ اس طرح میں نے وہاں سے اپنی 40 دن کی غیر حاضری کا جواز پیدا کر لیا تھا۔ ہم ان دنوں چلہ کشی کریں گے اور ہمیں اس دوران کسی سے ملنا پسند نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے یہی چلہ کشی کی تو بھی ہمارے عقیدت مند اور مرید ہم سے ملنے اور ہمارا دیدار کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہم 40 دن کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ میں دہلی سے باہر کہاں یہ ہم نہیں بتانا چاہتے، کیونکہ ہمیں علم ہے کہ اگر ہم نے یہ بتا دیا تو لوگ وہاں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ظاہر ہے کہ میرے کسی بھی عمل پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ محفل برخاست ہونے پر اور لوگوں کے جانے کے بعد میں نے حمزاد کو طلب کیا۔ تم نے جگہ کا انتخاب کر لیا ہے؟ میں نے حمزاد سے دریافت کیا۔ جی ہاں، ہمیں دہلی سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ قطب مینار کے ارد گرد کچھ کھنڈرات ہیں، وہاں تمام کام بخوبی ہو سکتا ہے اور 40 دن بغیر کسی خوف و خطر کے وہاں گزارے جا سکتے ہیں۔ حمزاد نے جواب دیا، لیکن یہ سب کچھ ہوگا کس طرح؟ ابھی میں پوری طرح سب باتیں سمجھ نہیں پایا ہوں۔ اس سے بیشتر 2 بار جب اس کی نوبت آئی تو ہمارے کام رضیہ آئی تھی۔ اب ہم کس کا سہارا لیں گے؟ میں نے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کا اظہار کر دیا۔ اس سے بیشتر بار آپ کا سر جسم سے جدا تھا، اس لیے میری قوتیں بھی وقتی طور پر مفلوج ہو گئی تھیں، مگر اس بار ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں میرے اور آپ کے علاوہ کسی تیسری ہستی کی موجودگی ضروری نہیں۔ حمزاد نے کہا، میں اب بھی تمہارے
بات پوری طرح نہیں سمجھ پایا۔ اس بار میں خود آپ کو قتل کروں گا۔ اور عنایت کو بھی حمزاد کا جملہ سن کر میں کانپ گیا۔ وہ مجھے اور عنایت کو قتل کر کے میرا سر اس کے جسم سے جوڑ دینا چاہتا تھا۔ قتل ہونے کا تصور ہی میری نظر میں نہایت بھیانک تھا۔ مجھے اس سے پہلے 2 بار اس کا تجربہ ہو چکا تھا اور میں اس تکلیف و اذیت سے بھی آشنا تھا جو اس سنگین اور بھیانک تجربے کے عوض مجھے برداشت کرنی پڑی تھی۔ اس رات حمزاد مجھے لے کر قطب مینار کے قریب ایک کھنڈر میں پہنچ گیا۔ ہر طرف تاریکی کا راج تھا اور حمزاد مجھ سے رخصت ہو کر عنایت کو لینے گیا ہوا تھا۔ آنے والے ہولناک لمحات کا تصور میرے لیے سوہان روح بنا ہوا تھا۔ میرا دل اس شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے اچھل کر باہر آ جائے گا، لیکن میں زیادہ دیر اس کیفیت سے 2-4 نہیں رہا۔ حمزاد کو لوٹنے میں دیر نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر عنایت کا بے ہوش جسم تھا جو اس نے بہت آہستگی کے ساتھ پتھریلے فرش پر ڈال دیا۔ اندھیرا ہونے کے سبب اس کے جسم کے بارے میں صرف اندازہ ہی لگا سکتا تھا کہ وہ عنایت کا جسم ہے، کیونکہ مجھے اس کے چہرے کے خدوخال نظر نہیں آ رہے تھے۔ سیدھے تن کر بیٹھ جائیے، حمزاد کی آواز تاریکی کا سینہ چیرتی ہوئی میرے سماعت سے ٹکرائی۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ میں کچھ دیکھا، غالباً وہ خنجر ہوگا۔ پہلے کون قتل ہوگا؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میری آواز میں گھبراہٹ اور خوف کا عنصر شامل تھا۔ عنایت اور اس کے بعد آپ، تاکہ آپ کو زیادہ تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے۔ حمزاد کے ان الفاظ کے ختم ہوتے ہی مجھے ایک گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی، خرخر سے مشابہ آواز، بالکل ایسی آواز جیسے کسی بکرے کو ذبح کرتے ہوئے سنائی دیتی ہے۔ میرا جسم اب نمایاں طور پر کانپنے لگا تھا۔ خود قتل ہونے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ سنبھلیے، حمزاد میری طرف پلٹا اور میں نے چاہا کہ اسے کچھ دیر رکنے کو کہوں، مگر میرے الفاظ ہونٹوں سے ادا نہ ہو سکے، کیونکہ اس سے پہلے ہی حمزاد کا ہاتھ اپنا کام کر چکا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی دہکتی ہوئی انگیٹھی میرے گردن پر انڈیل دی گئی ہو۔ اس کے بعد دوسرے ہی لمحے میرا سر جسم سے جدا ہوا اور عنایت کے تڑپتے ہوئے جسم سے جا لگا۔ گردن کی پچھلی ہڈی پر مجھے ایک بھرپور ضرب کا احساس ہوا اور اس کے بعد مجھے اپنے حواس پر قابو نہ رہ سکا۔ انتہائی تکلیف و اذیت نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ میری طویل زندگی میں وہ 40 دن خود محسوس کیے بغیر نہ گزر سکے۔ وہ تکلیف و اذیت سے بھرپور 40 دن گزرے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ ایک بڑا مرحلہ گزر چکا تھا۔ اب ایک جوان اور صحت مند جسم کا مالک بن چکا تھا، لیکن اپنے چہرے پر پڑے ہوئے جھریوں کے جال، اندر دھنسی ہوئی آنکھوں اور ابری ہوئی رخساروں کی ہڈیوں کو تبدیل کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میرا جسم جوان تھا مگر چہرہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ 40 دن بعد جب میں نے اپنی محفل سجائی تو مجھے ایک عجیب سی طمانینت کا احساس ہوا، جیسے میری کھوئی ہوئی مملکت پھر واپس مل گئی ہو۔ میرے ارد گرد حسب معمول عقیدت مندوں اور میرے مریدوں کا حلقہ تھا۔ ان میں امیر بھی تھے اور غریب بھی، سرکاری افسران بھی تھے اور عام شہری بھی، ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی۔ انہی لوگوں میں ایک طرف سر جھکائے عظمت اللہ بیٹھا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں غم کے صحرائے سائے لہراتے دکھائی دیے۔ میں اس کے غم سے آشنا تھا۔ جوان اولاد کے بچھڑنے کا غم معمولی نہیں تھا۔ وہ گمسم خاموش تھا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ عظمت اللہ جس کے بیٹے کے جسم پر اب میرا قبضہ تھا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا۔ تمہارے دکھ سے ہم بے خبر نہیں ہیں عظمت اللہ، مگر ہم تمہیں سوائے صبر کی تلقین کے اور کچھ نہیں دے سکتے۔ عنایت اللہ اب کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ نہیں، ایسا نہ کہیے مرشد، میری آس نہ توڑیے۔ عظمت اللہ میری بات کاٹ کر گڑ گڑایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم ایسا ہرگز نہ کہتے، مگر حقیقت یہی ہے اور مشیت عزوی میں دخل دینا ناممکن ہے۔ ہمارا علم ہمیں یہی بتاتا ہے، ہر چند کہ تم نے ہمیں عنایت اللہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ 40 دن سے لاپتہ ہے۔
क्यों, क्या हम गलत कह रहे हैं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुर्शिद सच कहते हैं। वो मेरे पांव पर गिरकर उन्हें चूमते हुए बोला। तमाम हाजरीन महफिल मुतासर नजर आ रहे थे। फिर ना जाने क्या हुआ कि अजमतुल्लाह एकदम चौंक पड़ा, जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वो मेरा दायां पांव पकड़े हैरत से उसे घूर रहा था। फिर उसने बरसरे महफिल एक ऐसी नाश्ता हरकत की कि मुझे अपना पांव घसीट लेना पड़ा। उसने मेरे पायजामा पिंडली से ऊपर तक चढ़ा दिया था और अब घुटने को गौर से देखने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल वही, कतई वही। वो बड़बड़ाया। तुम्हें क्या हो गया है अजमतुल्लाह? मैंने कड़क कर पूछा। क्या तुम अदाब महफिल भी भूल गए? यह कहकर मैंने फौरन हमजाद को तलब किया ताकि उससे हकीकत मालूम कर सकूं कि अजमतुल्लाह की मौजूदा कैफियत का सबब क्या है। और फिर हमजाद ने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर मैं भी चौंक पड़ा। अब मुझे तमाम मामले को संभालना था, वरना यह मुमकिन था कि बात बिगड़ जाती। मैंने आगे बढ़कर अजमतुल्लाह को सीने से लगाया। मैं जानता था अजमतुल्लाह, ये निशाना देखकर तुम्हारे दिल में अनायत की याद के जख्म ताज़ा हो जाएंगे। ये हमारा एक अदना सा करिश्मा था। तुम्हारे दुख को जानने के लिए हमने ऐसा किया। हम वाकिफ हैं कि अनायत के दाएं पांव पर भी उंगलियों से ऊपर उसी तरह जख्म का निशान था, और दाएं घुटने पर भी एक बार बचपन में चबूतरे से गिरने के सबब उसे ये चोटें आई थी। मैंने नहायत पुरसकून आवाज में बात बता दी और अजमतुल्लाह फूट फूट कर रोने लगा। वो अब मेरे कदमों में गिर गया था। जाओ, अब घर जाओ, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तुम्हें सब्र मिले, मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। नया जिस्म मिलने के बाद तो जैसे मैं पारा का आखिरी इंतकाम मेरे जहन से निकल ही गया। हर शब मेरे लिए नई थी, जैसे अहदे जवानी एक बार फिर लौट आया हो। और उन्हीं दिनों मैंने अपने अकीदतमंदों और मरीदों से एक नाम सा गश्याम दास उसके बारे में मालूम हुआ कि वो एक तवील अरसे अफ्रीका में रह कर आया है और वहाँ के पुरसरार अलूम से वो अच्छी तरह वाकिफ है, बल्कि खुद उसके पास कुछ पुरसरार कुव्वतें हैं। पूरे दहली में इन दिनों उसी का चर्चा था। मैंने उसके इतने तज़किरे सुने कि मेरे दिल में उसे देखने की ख्वाहिश पैदा हुई, और साथ ही ये ख्वाहिश भी कि किस तरह ये मालूम किया जाए कि उसके पास क्या पुरसरार कुव्वतें हैं और वो कितने पानी में है। मैं चाहता था कि अगर मुमकिन हो तो लोगों के जहन से उसका भूत उतार दिया जाए। ऐसा मुमकिन था, लेकिन सिर्फ उस वक़्त जब वो लोगों के दरमियान अपनी किसी पुरस्रार कुव्वत का मुजाहरा कर रहा हो। उसकी कुव्वतों को हमजाद के ज़रिए नाकारा बनाकर उसे बेआसानी लोगों की नज़र में जलील किया जा सकता था। यही जज्बा जिसने मुझे इस बात पर आमादा किया कि मैं घनश्याम दास को एक नज़र देख लूं, और जल्द ही मुझे उसका मौका भी मिल गया। एक दिन मैंने सुना कि रामलीला ग्राउंड में एक बड़े मजमे के सामने घनश्याम दास अपनी पुरस्रार कुव्वतों का मुजाहरा करेगा। ये एक सुनहरी मौका था। मैं उसकी शहरत और इज्जत को खाक में मिला देता। मैं मौका को गनीमत जानकर अपने मरीदों के हलके में सरे शाम ही रामलीला ग्राउंड में पहुंच गया, जहां एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया था और लोगों के बैठने के लिए जमीन पर फर्श बिछाए गए थे। हजारों अफराद वहां जमा थे, और कुछ देर बाद ही घनश्याम स्टेज पर आकर अपने करतब दिखाने वाला था। दहली की आवाम के लिए मेरी शख्सियत नई नहीं थी। हिंदुओं के दिलों में मेरी तरफ से लाख दूरत व अदावत सही, मगर उन्होंने मुझे देखते ही हाथों हाथ लिया। ये उनके लिए बड़ी इज्जत व इफ्तिखार की बात थी कि मैं उनके जलसे में शिरकत करने आया था। मुझे आगे, सबसे आगे जगह दी गई, जहां शहर के दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन बैठे थे। चंद लम्हे बाद ही घनश्याम दास साधुओं के से लिबास में स्टेज पर नमूदार हुआ और पूरा ग्राउंड नारों से गूंज उठा। घनश्याम के हमरा उसका एक चेला भी था। उसने हाथ जोड़कर सबके नारों का जवाब दिया और मजमे को मुखातब करके एक अंगीठी और कोयलों की फरमाइश की। मुंतज़ामीन में से किसी ने उसकी फरमाइश पूरी कर दी। घनश्याम ने अंगीठी दहकाना शुरू कर दी, और जब कोयले पूरी तरह अंगारों में तब्दील हो गए तो उसने उन्हें एक लोहे के परात में निकाल लिया और मजमा में दरमियान आकर लोगों को दहकते हुए कोयले दिखाने लगा। मैंने उसकी तमाम हरकत व सकनात का पूरी तरह जायजा ले रहा था और उसी पर नजर रखे हुए था।
इस तवक्का में था कि कब वो कोई दावा करे और कब मैं उसके दावे को बातिल बना दूं, लेकिन अभी तक उसकी कोई ऐसी बात नहीं की थी। वो अब मजमे के आखिर तक जाकर पलट रहा था और फिर मजमा के बिल्कुल दरमियान में पहुंचकर अचानक उसने एक ऐसी हरकत की कि लोगों के मुंह से चीखें निकल गईं। उसने परात में दहकते हुए अंगारे मजमा के ऊपर बखेर दिए थे। इस वजह से लोग चीख पड़े थे, मगर दूसरे ही लम्हे पूरा ग्राउंड जोरदार तालियों और नारों से गूंज उठा। वो अंगारे लोगों तक पहुंचते पहुंचते गुलाब के महकते हुए फूलों में तब्दील हो चुके थे। मैं खोल कर रह गया। वो जालिम अपना कमाल अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर दिखा चुका था और मैं इस बात का मुंतज़िर रहा कि वो कुछ मुंह से कहे। वो अब फिर स्टेज पर पहुंच चुका था और सर झुकाकर लोगों की तहसीन और सताइश का जवाब दे रहा था। मैं अब पूरी तरह मुस्तइद होकर उसके दूसरे करतब का इंतज़ार करने लगा। अब मैंने हमजाद को तलब कर लिया था ताकि वो मुझे बर वक्त आगाह कर सके कि घनश्याम अब क्या करने वाला है और हमजाद के ज़रिए मैं उसका तोड़ कर सकूं। लेकिन इस बार हमजाद को मुझे कुछ बताने की ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि घनश्याम कह रहा था, साहबो, अब मैं आपके सामने एक ऐसा कमाल का मुजाहरा करने वाला हूँ जो मैंने बतौर ख़ास अफ्रीका में सीखा है, और ये कमाल मैंने चंद पुरअसरार कुव्वतों को अपने कब्ज़े में हासिल करके किया है। अब में से सिर्फ नौजवान स्टेज पर आ जाएं, मैं उन्हें बरहना तलवारें दूंगा। वो मुझ पर बिला रोक टोक और बगैर किसी लगावट के इन तलवारों से हमला करें। मैं अपने साथ में कुछ नहीं रखूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि तलवारें मेरे जिस्म से गुजरती रहेंगी, मगर मेरा जिस्म अपनी जगह रहेगा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो मुझ पर हमला करते हुए ज़रा भी ना हचकचाएं, क्योंकि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये मुख्तसर तकरीर के बाद वो खामोश हो गया और नौजवानों का इंतज़ार करने लगा। लीजिए, उसने अपनी मौत को खुद आवाज़ दे ली। हमजाद ने सरगोशी की, मगर उसने ये दावा किया किस तरह? मैंने दबी हुई आवाज़ में हमजाद से पूछा, ताकि मेरे करीब बैठे हुए लोग मेरी आवाज़ ना सुन पाएं। उसके पास यकीनी तौर पर कुछ पुरस्रार कुव्वतें हैं, मगर वो इंतहाई मामूली दर्जे की हैं, जिन पर मैं पूरी तरह काबू पा सकता हूँ। इनमें कुव्वतों को आगे ही बढ़ने नहीं दूंगा जो उसे बचा सके। कुछ ही देर में 9 नौजवान स्टेज पर पहुंच गए। उनके स्टेज पर आते ही घनश्याम ने स्टेज पर रखा हुआ एक स्याह बक्स खोला और 9 तलवारें निकालकर उन नौजवानों में तकसीम कर दी। फिर इन नौजवानों से मजमा में जाने के लिए कहा और वो लोगों को ताकि तलवारें दिखाएं, ताकि उन्हें भी यकीन आ जाए कि वो लोगों की तलवारें असली हैं और उनकी धार भी तेज़ है। वो तमाम नौजवान अपनी अपनी तलवारें सारे मजमे में दिखाकर फिर स्टेज पर पहुंच गए। घनश्याम इनके दरमियान खड़ा हो गया। उसने कहा था कि जैसे ही हाथ का इशारा करके वो सब उस पर हमला कर देंगे। मैंने देखा कि घनश्याम के होंठों पर कुछ बड़बड़ाया और उसके दाएं हाथ को हरकत हुई, और फिर घनश्याम दास की दिल दो चीख सुनाई दी। उसका जिस्म स्टेज पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। तलवारों की ढेर वाकई बहुत तेज थी और बीक वक्त 9 तलवारों के वार उसका जिस्म सख्त मजरू हो चुका था। आधी गर्दन कट गई, सर के 2 टुकड़े हो गए और हाथों और पैरों पर कई जगह गहरे जख्म थे। तमाम नौजवान मबहूत और हैरत ज़दा से होकर उसे तड़पते हुए देख रहे थे। मुमकिन है वो सोच रहे हों कि ये भी उसी करतब का कोई हिस्सा हो और घनश्याम फिर उठ खड़ा हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर तक तो मजमे पर भी सकते का आलम तारी हो गया। वो कुछ भी न समझ पाए कि अचानक क्या हो गया। फिर शायद मुंतजमीन में से को होश आया और वो स्टेज की तरफ दौड़े, और ऊपर कुछ देर बाद उनमें से एक ने नहायत उदास लहजे में लोगों को बताया कि घनश्याम दास मर चुका है और खुद अपने करतब का शिकार हो गया है।
اس کا خیال ظاہر کیا تھا کہ جو منتر وہ پڑھ رہا ہے ممکن ہے وہ ادھورا رہ گیا ہو اور نوجوانوں نے حملہ کر دیا ہو۔ بہرحال یہی موقع تھا کہ میں گھنشیام پر اپنی فوقیت جتا کر لوگوں کو مرعوب کر سکتا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اسٹیج پر پہنچ گیا۔ مجھے کسی نے بھی اسٹیج پر چڑھنے سے نہیں روکا کیونکہ میں ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے مجمع سے مخاطب ہوا۔ گھنشیام داس ابھی اپنے فن میں کچا تھا، اسے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ بہرحال جو کچھ ہوا بڑے دکھ کی بات ہے۔ اس نے جن کمالات کا اظہار کیا وہ ہم بھی دکھا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی، مگر ہم نے اسے موقع دیا۔ ہم اپنی بات کے ثبوت میں چاہتے ہیں کہ وہ دونوں معمولی کرتب آپ سب کو دکھائیں، جن میں سے ایک تو گھنشیام پورا کر سکا مگر دوسرے میں اپنی جوان گنوا بیٹھا۔ نہیں نہیں، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے، ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ مجمع میں سے کئی لوگ چیخے۔ یہ غالباً میرے مرید تھے جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، مگر اسی کے بعد دوسری آوازیں سنائی دیں، اگر بزرگ صاحب تو تم سچے ہو تو یہ کمالات ضرور دکھاؤ۔ یہ ان متعصب ہندوؤں کی آواز تھی جو گھنشیام کو چاہتے تھے اور مجھ سے کدورت رکھتے تھے۔ آپ سب خاموش ہو جائیں، ہم سب کی خواہش ضرور پوری کریں گے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر میں نے بھی اسی انگیٹھی اور کوئلے منگوائے، انہیں اچھی طرح دہکایا اور بالکل گھنشیام کی طرح سارے مجمع میں ان کی نمائش کی، اور مجمع میں کے درمیان آ کر وہ دہکتے ہوئے انگارے ان پر بکھیر دیے جنہیں حمزاد نے ان پر پھینکے جانے سے پہلے ہی پھولوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ سارا مجمع زور زور سے تالیاں بجانے لگا۔ بزرگ صاحب کی جے، بزرگ صاحب کی جے، پورا گراؤنڈ گونج اٹھا، اور اس کے بعد میں نے اسٹیج پر پہنچ کر انہی نوجوانوں کو بلایا جنہوں نے گھنشیام کو جہنم رسید کیا تھا۔ وہ سبھی سخت خوفزدہ اور گھبرائے ہوئے تھے، اسی لیے وہ بے مشکل تیار ہوئے۔ میں بھی گھنشیام کی طرح ان کے درمیان کھڑا ہو گیا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں حملہ کرنے کے لیے کہا، اس سے پہلے کہ حمزاد میرے جسم کے گرد ایک نادیدہ حصار قائم کر چکا تھا جس سے کسی شے کا گزرنا محال تھا۔ تلواریں برستی رہی مگر میں اپنی جگہ خاموش کھڑا رہا۔ لوگ پھر حیرت و خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ اس کے بعد میں نے ہاتھ کے اشارے سے حملہ روکنے کے لیے کہا۔ وہ نوجوان حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، اس غرض سے کہ کہیں کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے۔ وہاں پولیس کے کئی ٹرک بھی موجود تھے۔ مجھے اب ایک اور نئی بات سوجھی۔ میں نے مجمع کو مخاطب کیا، یہ تو وہ کمالات تھے جو گھنشیام دکھانا چاہتا تھا، اب میں اپنی طرف سے ایک کمال کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پولیس کے ٹرک موجود ہیں۔ میں پولیس والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک ٹرک سٹیج کے قریب لے آئیں۔ میں اسے پورے وزنی ٹرک کو اپنے ہاتھوں کی ایک انگلی پر اٹھا لوں گا۔ یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا بلکہ میں اس بات کا ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر ٹرک کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تمام ہی لوگ سخت متعجب اور مضطرب تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ٹرک سٹیج کے قریب آ گیا اور اس میں سے سپاہی اترنے لگے۔ نہیں نہیں، تمام سپاہی ٹرک پر ہی بیٹھے رہے، میں نے سپاہیوں کو اترتے دیکھ کر کہا، اور سپاہی پھر ٹرک پر واپس چڑھ گئے۔ میں نے ٹرک کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی حمزاد کو اشارہ کیا۔ میں نے ٹرک کا ایک کنارہ پکڑا اور لوگوں نے دیکھا کہ ٹرک زمین سے اٹھ کر سٹیج پر آ گیا۔ لوگ حیرت زدہ تھے کہ یہ عجیب اور ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے۔ جب ٹرک سٹیج پر آ گیا تو میں نے اسے پہلے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا۔ حمزاد نے فوراً ہی اپنے نادیدہ ہاتھ آگے کیے اور ٹرک فضا میں بلند ہونے لگا۔ ٹرک میں بیٹھے ہوئے سپاہی حیرت و خوشی سے چیخنے لگے۔ ان کے چیخو پکار سے مجمع کا سکوت بھی ٹوٹ گیا اور وہ تالیاں بجانے لگے۔ ٹرک اب میرے سر سے اونچا تھا، پھر وہ ہاتھ بھر اوپر جا کر معلق ہو گیا، پھر وہ ٹرک میری انگلی پر گھومنے لگا، حالانکہ صرف میں ہی اس بات کو محسوس کر سکتا تھا کہ میری انگلی پر قطعی کوئی دباؤ یا وزن نہیں ہے اور ٹرک کا سارا وزن حمزاد سنبھالے ہوئے ہے۔ پھر میں نے جس طرح آہستہ آہستہ ٹرک پر سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے، اب اسے نیچے اتارنے کے لیے دونوں ہاتھ
ट्रक के नीचे लगा दिए, जिससे अब ट्रक का बोझ मेरे दोनों हाथों पर होकर ट्रक आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा। और उसी वक्त अचानक मैंने महसूस किया मैं जैसे मेरे दोनों हाथों पर हजारों मन बोझ आ पड़ा हो, जैसे मेरी दोनों कलाइयां और बाजू टूट गए हों। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। वो गालबन एक लम्हे का 1000वां हिस्सा था जब मैंने महसूस किया कि अगर मैं जल्दी से ट्रक से एक तरफ ना हटा तो उसके बोझ तले दबकर मर जाऊंगा। उस एहसास के साथ ही मैं तेजी से एक तरफ हटा और गिरते ही अपने होश खो बैठा। मगर होश खोने से पहले मैंने एक जहरीला कहका जरूर सुना था। उस कहके को मैं हजारों में पहचान सकता था। वो मैक पारा का कहका था। मुझे होश आया तो मैं अपने चारों तरफ लोगों का हजूम देखा। किसी ने गालबन मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई, उसके साथ ही मेरे मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकल गई। मेरे पूरे जिस्म से सांप लिपटे हुए थे जो मुझे बुरी तरह जकड़े हुए थे, और एक तरफ मुझे मैं पारा का हसीन हयोला नजर आ रहा था। मुझे होश में आते देखकर उस जालिम के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। सिर्फ तुम ही मुझे देख और सुन सकते हो शेख, और तुम्हारे जिस्म पर जो सांप लिपटे हुए हैं वो भी नादीदा हैं। उन्हें भी तुम्हारे अलावा कोई और नहीं देख सकता। लोग सिर्फ इतना देख रहे हैं कि तुम्हारा जिस्म बुरी तरह अंठा हुआ है। आज तुम्हारी दुनिया से हमेशा के लिए जा रही हूँ, और हस्बे वादा तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैंने तुमसे अपना आखिरी इंतकाम ले लिया। और ये इंतकाम एक अजीब नोयत का इंतकाम है। ये इंतकाम मेरी गैर मौजूदगी में अब उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। आज मैंने इस आखिरी इंतकाम की इब्तिदा कर दी है। मैं तुम्हें उलझन में रखना चाहती, इसलिए अपने अजीब और खौफनाक इंतकाम के बारे में तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती हूँ। तो सुनो, जब तक तुम जिंदा रहोगे अपाहजों और मोहताजों की जिंदगी बसर करोगे। तुम्हारी रूह को सुकून ना मिल सकेगा। तुम मुसलसल जिस्मानी अजियत में मुब्तला रखे जाओगे, और इसके लिए मुझे अब तुम्हारी दुनिया में भी आने की ज़रूरत नहीं होगी। तुमने अब से एक हफ्ते कबल नया जिस्म अपनाया है जिसे मैंने आज मफलूज कर दिया है। तुम्हारे इस जिस्म के दोनों हाथ हमेशा के लिए नकारा कर दिए गए हैं, और अब जिस्म के बाद तुम जो भी जिस्म अपनाओगे उसे अपने लिए चंद ही दिन में मुसीबत और अजाब में पाओगे। हर जिस्म किसी न किसी तरह मफलूज होता रहेगा। अब गालबन तुम सब कुछ समझ चुके हो, इसलिए मुझे इजाज़त दो हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें एक ज़हीन और बहादुर दुश्मन नसीब हुआ। इन अल्फाज के साथ ही वो हयोला गायब हो गया और मेरे जिस्म से सांपों की गिरफ्त भी खत्म हो गई। कुछ देर बाद मैं उठकर बैठने के काबिल हो गया तो लोगों ने ये देखा कि मैं उठना चाहता हूँ, तो उन्हें मुझे सहारा दिया और उठाकर बिठा दिया। मुझे अपने दोनों हाथों में टीस उठती महसूस हो रही थी, नाकाबिले बर्दाश्त टीस। मैंने हमजाद को तलब किया, क्या तुम मुझे इस अजाब से निजात दिला सकते हो? मैंने लोगों की मौजूदगी को नज़रअंदाज करते हुए बेमुश्किल रुक रुक कर हमजाद से कहा। क्यों नहीं, हमजाद बोला, और उसने अपने दोनों हाथ मेरे हाथों पर पैर से उसके हाथों की हरकत के साथ साथ तकलीफ कम से कम होती गई। मैं उठकर खड़ा हुआ तो देखा कि स्टेज पर ट्रक बाएं बाजू के बल पड़ा हुआ है। मालूम हुआ कि जैसे ही मैंने ट्रक से अपने हाथ उठाए ट्रक पहलू के बल गिरा था। 2-3 सिपाही भी जख्मी हो गए, मगर उनकी चोटें मामूली थी। अब मजमा अब रुखसत हो चुका था क्योंकि मैं काफ़ी देर बेहोश रहा था। अब मेरे इर्द गिर्द उस जलसे के मुंतजमीन और मेरे मुरीद रह गए थे। घनश्याम की लाश भी उठाई जा चुकी थी। मुंतजमीन तबसरा कर रहे थे कि यह जलसा अजीब नोयत का था। इसमें एक शख्स तो हलाक हो गया और दूसरा शदीद मजरूह हो गया। लोगों के रुखसत होते ही मैंने हमजाद को तलब किया। वो सिर्फ चंद लम्हे थे जब मैंने पुरस्कार कुव्वतों को सलब होते महसूस किया। हमजाद ने मेरे इस्तफार पर बताना शुरू किया, लेकिन मैंने अपनी कुव्वतें ज़ाहिर होते हुए भी आपको बचाने की खातिर ट्रक दूसरी सिमत उलट दिया था, वरना आप सिर्फ हाथों से महरूम ना होते बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी शदीद खतरा लाहक हो सकता था। इस पुरस्कार कुव्वत के बारे में जिसने मेरी कुव्वतें सलब कर ली हैं कुछ भी नहीं जान सका। हाँ, सिर्फ कयास ज़रूर किया जा सकता है, और उसके बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने कहा। और उसके बाद मैं पारा की रूह ने मुझसे जो कुछ कहा था उसे मैंने हमजाद को आगाह कर दिया। वो सब कुछ सुनकर भी खामोश रहा।
और उसकी खामोशी का सबब मैं जानता था। उससे पहले भी मैं पारा के मुकाबले में उसको बेदस्तों पा देख चुका था। बहरहाल अब हो गया जो होना था। हमजाद ने ठंडी सांस भरकर कहा, तुम्हें इस सिलसिले में कोई रंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वाकिफ हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैंने हमजाद को मलोल देख कर कहा। फिर दूसरी शाम लोगों ने एक अजीब ही मंजर देखा। मेरे सामने खाना रखा था और लुकमे बन बन कर खुद ब खुद मेरे मुंह तक पहुंच रहे थे और देखने वालों की आंखें हैरत से फटी हुई थी। फिर जब मैं इस तरह खाना खा चुका तो पानी का जग अपनी जगह से उठा और गिलास में पानी गिरने लगा। फिर वो गिलास मेरे होंठों से आ लगा। इस बात से सिर्फ मैं ही आगाह था कि हमजाद मेरे दोनों हाथों की कसर पूरी कर रहा था। खाने से फारिग होकर मैंने हमजाद को रुखसत कर दिया और कुछ देर बाद ही जाने क्यों मेरी पलकें बोझल होने लगी। मैंने लोगों को रुखसत कर दिया और वही नींद दराज हो गया। गुरूदगी अब मेरे जहन पर पूरी तरह छाने लगी थी। ठहरिए ठहरिए, खतरा है। उस आवाज़ को पहचानने में यकीनन मुझसे देर हुई, क्योंकि मैं जूं जूं नींद में डूबता गया वो आवाज़ दूर होती गई और उस वक़्त मैंने जाना कि वो आवाज़ हमजाद की थी, मगर अब मैं हदूद से तजावुज़ कर चुका था। मैं ख्वाब और बेदारी की सी मिली जुली कैफियत में रंगो खुशबू के हजूम में घिरा हुआ था। मैंने जब हमजाद की आवाज़ का गौर किया तो घबरा कर आंखें खोल दी। वो जगह और लड़की दोनों ही मेरे लिए अजनबी थे। कौन हो तुम और मैं यहाँ किस तरह आ गया? अब मेरी आवाज़ में किस कदर गुस्सा और झंझलाहट थी। यहाँ तुम आए नहीं, लाए गए हो, और मैं कौन हूँ और तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ, ये सब कुछ जानने के लिए तुम्हारे इल्म में सिर्फ इतना आ जाना काफ़ी है कि मैं उस घनश्याम दास की बेटी हूँ जिसे तुमने धोखे से मार दिया। मैं जानती हूँ कि मेरे बाप के कातिल तुम हो, सिर्फ तुम, वरना वो इससे पहले सैकड़ों दफ़ा अपनी पुरस्रार कुव्वतों का मुजाहरा कर चुका था। मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे पास क्या पुरस्रार कुव्वत है, इसलिए मैंने कबल अज वक्त तुम्हें उस कुव्वत से दूर कर दिया। वो कहे जा रही थी और मैं हैरत ज़दा सा उसकी बातें सुने जा रहा था। मैं जान चुका था कि मैं एक बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका हूँ। मैं यहाँ तुम्हें सिसका सिसका कर मारूंगी, और फिर कह रही थी कि मैं तुमसे अपने बाप की मौत का इंतकाम लूंगी, और तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी जिस आसानी से मेरे बाप ने जान दे दी। यह कहकर वो उठी और जीने की तरफ बढ़ी। ठहरो, मैं चीखा, तुम्हें यकीनन कोई बड़ी गलत फहमी हुई है। शेख करामत, गलत फहमी मुझे नहीं, तुम्हें है। वो बगैर मुड़े बोली, उमला इतनी भोली नहीं है कि तुम्हारे बारे बातों में आ जाए। तुम्हारा नाम मुल्ला, मैं बोला, और तुम मेरा नाम भी जानती हो। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम कर चुकी हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि अगर तुम्हें ढील दे दी जाए तो तुम खतरनाक भी हो सकते हो। वो अब सीढ़ियों पर कदम रख चुकी थी। मुझे और कुछ ना सूझा तो उसके पीछे लपका। वो एकदम मुड़ी और मेरी आंखों में आंखें डाल दी। तुम अपनी जगह से हरकत नहीं करोगे, समझे तुम? उसकी आवाज़ मुझे कहीं दूर से आती हुई सुनाई दी। उसके जाने के बाद दरवाज़ा बाहर से लग गया और मैंने उसके साथ महसूस किया जैसे अब मैं अपने जिस्म को हरकत दे सकता हूँ। मैंने कदम उठाए और तेजी से जीना चढ़ने लगा। मेरे दोनों हाथ पहले ही मफलूज हो चुके थे, इसलिए मैंने कंधे से दरवाजे को जोर से धचका लगाया, मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। वो दरवाज़ा खासा मजबूत था। मैं मायूस होकर नीचे उतर आया। उस कमरे में ज्यादा सामान नहीं था। एक तरफ सिर्फ एक मसहरी बिछी हुई थी जिस पर कुछ देर पहले मैं और वो मुल्ला मौजूद थे, और कमरे की दीवार के बराबर कोने में एक स्याह मुजस्मा पड़ा था। मैं बेबसी के आलम में मसहरी पर आके लेट गया। मैं चूहे दान में फंस कर रह गया, जहां से निकलने की कोई राह नजर नहीं आ रही थी। अब मैं उस वक़्त को कोस रहा था जब मैंने बैठे बिठाए घनश्याम दास से उलझने के बारे में सोचा, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। मौत मेरी आंखों में नाच रही थी। वमला मुझे यकीनन तड़पा तड़पा कर मारने पर कादर थी। मैं इन्हीं ख्यालात में खोया हुआ था। मैं चौंका उस वक़्त जब मैंने अपने दोनों पाँव पर सरसराहट सी
महसूस की। मैंने पाँव झटका, मगर उसके साथ मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे लातादाद सुइयां मेरी पिंडलियों में उतर गई हों। मैं घबराकर उठ बैठा और मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरे दोनों पांव पर सैकड़ों सुरख सुरख चिमटे मेरे जिस्म के बड़ाई हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे, और उनके डंक, तेज और नोकीले डंक, मेरे जिस्म में प्यूसत हो रहे थे। मेरे हाथ अगर मफलूज ना होते तो मुमकिन था कि मैं उनसे इतना ना घबराता और इस मुसीबत से निजात पाने की कोशिश करता। कुछ ही देर में उन चींटों ने काट काट कर मेरा जिस्म सजा दिया। अब मेरे पूरे कमरे में अज़तराब व बेचैनी से दौड़ता फिर रहा था, मगर मुझे उन चींटे से निजात नहीं मिल रही थी। वो हर तरफ मेरे जिस्म से चिमटे हुए थे, मेरे सारे जिस्म पर दौड़ रहे थे, और उनमें सख्त खुजली, जलन और सोजश हो रही थी। मुझे याद है मैंने कई घंटे इस अजियत में गुजारे, और फिर मैं बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने खुद को उसी जगह देखा, लेकिन अब चींटों का दूर दूर पता नहीं था। हाँ, उनकी याद अब भी मेरे जिस्म पर जलन और खुजली की सूरत में मौजूद थी। मुझे होश आए अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मैंने वमला को दरवाजा खोलकर नीचे आते हुए देखा। कहो, क्या हाल है? कुछ मजा आया? उसकी आवाज का जहर मैंने अपनी रूह में उतरते हुए महसूस किया, मगर मैं बेबसी से उसकी तरफ देखता रहा। खामोश क्यों है? कुछ बोलो ना। क्या तुम्हें मेरी वह तवाज़े पसंद नहीं आई? और हाँ सुनो, इतने देर बेहोश ना रहा करो, जल्दी जल्दी होश में आ जाया करो, ताकि दोबारा तुम्हारी तवाज़ा की जा सके। शायद तुम्हें अपने जिस्म में शदीद खुजली महसूस हो रही है। लाओ, मैं खुजा दूं, उसने कहा, और फिर ना जाने कहां से उसके हाथ में एक खंजर आ गया। वो खंजर मेरे लिए मेरी तरफ बढ़ी। मैंने उठना चाहा। उसने हाथ के इशारे से मुझे लेटे रहने के लिए कहा। उसकी आंखें मेरी आंखों से उलझी हुई थी। तुम उठने की कोशिश नहीं करोगे, वो बोली, और फिर उसने बड़ी बेरहमी से जगह जगह मेरे जिस्म की खाल छील डाली, जिससे खून रसने लगा। मेरे मुंह से चीखें बुलंद हो रही थी, लेकिन वो अपने दिलचस्प मशगले में मशगूल रही। मुझे तड़पता और सिसकता हुआ छोड़कर वो कुछ देर बाद ही लौट आई। इस बार उसके हाथ में एक बाल्टी थी, छोटी सी बाल्टी। वो मेरे करीब आकर मोहब्बत से बोली, देखो तुम्हारा जिस्म कितना गंदा हो रहा है। कमबख्त चींटों ने अच्छे खासे जिस्म की मट्टी पलीद कर दी। ये कहकर उसने मेरे लहूलुहान जिस्म पर बाल्टी में से कतरा कतरा पानी टपकाना शुरू किया। फिर बोली, इस पानी में मैंने बतौर खास तुम्हारे लिए खासा नमक घोला है, तुम्हारे जख्म ताकि अच्छे हो जाएं। पानी की एक एक बूंद मेरे जिस्म में आग लगा रही थी, और मैं बुरी तरह चीख रहा था। हिम्मत से काम लो, मर्द आदमी हो कि इस तरह चीखते चिल्लाते हो। लो, मैं जा रही हूँ। बस फिर वो मुड़ी और जीने पर चढ़ने लगी। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत और कुव्वत भी नहीं रही थी कि मैं ये सोच भी सकता कि उठ सकूं। मैं मुसहरी पर बेहसो हरकत पड़ा सिर्फ चीख सकता था। मैं अपनी जिंदगी से कतई मायूस हो चुका था। एक रात सोते सोते अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने आंखें फाड़कर चारों तरफ देखा। कमरे में गहरा अंधेरा था। जो चीज मेरे जागने का सबब बनी थी, उस पर मैंने गौर किया तो पता चला कि मूसलाधार बारिश और बिजली की कड़क से मेरी आंख खुली थी। मैंने पानी की बौछार से एक आध कतरा अपने जिस्म पर भी गिरता महसूस किया, और मुझे हैरत हुई कि यहाँ पानी किस तरह आ गया। काफी देर मैं इसी हालत में पड़ा सोचता रहा, और फिर अचानक जैसे मेरे जहन में सैकड़ों चिराग जल उठे। यकीनन ऐसा ही है। मैं बड़बड़ाया, और उसके साथ मैंने बमुश्किल अपने नहीफ और जख्मी जिस्म को घसीट कर मुसहरी से नीचे उतारा। नीचे आते ही कमरे के फर्श पर भी मैंने पानी महसूस किया, और मैं उसी पानी में लौटने लगा। अब मेरी आंखें किसी कदर अंधेरे से मानूस हो चली थी। मैंने देखा कि जीने के ऊपरी दरवाजे से कुछ फासले पर बने हुए सलाखों और रोशनदानों से पानी नीचे गिर रहा है। बारिश गालबन बहुत तेज हो रही थी। मैं तकरीबन लड़खता हुआ रोशनदान के नीचे पहुंच गया। अब बारिश का पानी बराह रास्त मेरे जिस्म पर पड़ रहा था। कुछ देर में ही मेरा जिस्म पानी में शराबूर हो चुका था। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। फिर मैंने हमजाद को तलब करने में देर नहीं की। मुझे इस जहन्नम से निकाल ले चलो। हमजाद के आते ही मैं चीखा, घबराइए मत, अब मैं आप तक पहुंच चुका हूं। अब कोई कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता। हमजाद ने जवाब दिया। फिर वो मुझे लेकर बहुत जल्द
मेरे मकान तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसने मेरी जिस्मानी हालत को बेहतर बनाने के लिए मेरे पूरे जिस्म पर अपने दोनों हाथ फेरे और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे जख्मों पर मरहम रख दिया हो। अलग सुबह ही मैं बेदार हो गया। अब सबसे पहले मुझे वमला की फिक्र थी। मैं उसके बारे में हमजाद से मालूम करना चाहता था। मेरे सवाल करने से पहले ही हमजाद ने मुझे वमला के बारे में बताना शुरू कर दिया। वमला अपने बाप के साथ ही अफ्रीका गई थी और उसने भी अपने बाप घनश्याम दास के साथ बहुत सारे अलूम सीखे थे। जब उसे ये मालूम हुआ कि उसका बाप अपनी पुरस्रार कुव्वतों का मुजाहरा करते हुए मारा गया, तो उसने अपनी पुरस्रार कुव्वतों के जरिए ये पता लगा लिया कि उसके बाप की मौत का असल सबब क्या था। फिर उसने आपको फांसने के लिए एक मंसूबा बनाया और इससे पहले कि मैं आपको होशियार करता, वो अपना काम कर गई। उसने ये सब कुछ इतनी जल्द और खिलाफ तवक्का किया कि मैं आपका आखिरी वक्त ही खतरे से मतला कर पाया। लेकिन उस वक्त तक मैं वमला का जादू आप पर चल चुका था। फिर उसके बाद उसने आपने को इतना मौका ही नहीं दिया कि आप इस काबिल हो सकते कि मुझसे मदद हासिल कर पाते। वो तो कुदरत ही कुछ मेहरबान थी और अभी आपकी जिंदगी थी जो आप बच गए, वरना आपको किसी सूरत जिंदा ना छोड़ती। हमजाद ये कहकर खामोश हो गया। क्या अब उसकी तरफ से कोई और खतरा लाहक नहीं? मैंने पूछा। खतरा तो है, मगर मेरे होते हुए वो अब आप पर हाथ नहीं डाल पाएगी, क्योंकि मैं इस वक्त तक आपको तनहा नहीं छोड़ूंगा जब तक आपसे अपनी बेबसी और उसकी अजियत का इंतकाम ना ले ले। हमजाद ने जवाब दिया। ठीक है, तो मालूम करो। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं एक बार उसे इसी तरह बेबसो मजबूर देख सकूं जिस तरह उसने मुझे बेबस कर दिया था। मैंने उससे कहा। गालबन तीसरे दिन हमजाद ने मुझे इतला दी कि आज रात वमला का फैसला हो जाएगा, क्योंकि वह उसके बारे में सब कुछ जान चुका है। हमजाद ने बताया कि वमला को आसानी के साथ जहर किया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसने मुझे तंबीह भी की कि उससे कोई गलत हरकत नहीं करूंगा, वरना उस सूरत में ये होगा कि हमजाद तो मेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा। वमला अपनी पुरस्रार कुव्वतों के जरिए मुझे बेबस कर देगी। हर चंद कि ये बात मेरी तबीयत और मजाज के खिलाफ थी, मगर मैंने मान ली। फिर उसी रात मगरिब के कुछ देर बाद हमजाद ने एकदम मुझे बताया कि गालबन वमला को हमारे इरादों के बारे में इल्म हो चुका है, इसलिए अब वो दहली से फरार हो रही है। तो फिर उसे रोको, उसे भागने ना दो, मैंने पुरजोश लहजे में कहा। लेकिन अब वो चौकन्ना हो चुकी है। अब उसे रोकने की कोशिश की गई तो दूसरी सूरत में वो खुदकशी कर लेगी, हमजाद ने बताया। मुझे हमजाद का ये फैसला कबूल करने के लिए अपने ऊपर जबर करना पड़ा। मैं हरगिज नहीं चाहता था कि वमला इतनी आसानी से निकल जाए, और वो भी मेरे इल्म में आने के बावजूद। लेकिन मैं इस पर भी राजी नहीं था कि वो खुदकुशी कर ले। मैं अपने दिल में इंतकाम की सुलगती हुई आग को ठंडा ना कर सकूं। दिल तेजी से गुजरते रहे और मेरे जहन में वमला का ख्याल महू होता गया, और फिर मैं उसे बिल्कुल ही भूल सा गया। लेकिन अब मुझे अपने हाथ पैरों की महरूमी के एहसास ने बेचैन शुरू कर दिया था। मैं मफलूज होने के सबब कदम ब कदम पर हमजाद का मोहताज होकर रह गया। आखिरकार एक दिन तंग आकर मैंने हमजाद से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इस मफलूज जिस्म से निजात हासिल कर ली जाए। हमजाद को मेरी राय से इतफाक नहीं था, मगर वो मेरी मर्जी और ख्वाहिश के सामने कतई बेबस था। इस बार फिर कुतुब मीनार के करीबी खंडरात हमारे काम आए। सब कुछ निहायत सुकून और इत्मीनान से हो गया। नया जिस्म भी जवान और खूबसूरत था। 40 दिन गुजारने के लिए जगह निहायत मुनासिब और मौजूद थी, और इससे पहले भी मैं यहाँ रह चुका था। लेकिन अभी सिर्फ 11 दिन हुए थे कि एक शाम मैंने खंडरात के करीब बहुत से कदमों की चाप सुनी। इसके साथ मेरी नज़र हमजाद के चेहरे पर पड़ी, जिस पर मुझे फिक्र के साए मंडलाते हुए नजर आए। बहुत बुरा हुआ, मैंने उसे बिल्कुल फरामोश ही कर दिया था। हमजाद बड़बड़ाया। लेकिन अब हो भी क्या सकता है? तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने जल्दी से पूछा। वमला की, हमजाद ने जवाब दिया।
आखिर वो अपना काम कर गई। वमला की इस गफलत से कोई फ़ायदा उठा सके, मगर वो फ़ायदा उठा गई, और इन 40 दिन से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। वो जानती थी कि इस सूरत में भी उसका कोई पुरस्कार हमला कारगर नहीं होगा, इसलिए उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। पुलिस इन खंडरात में आपको ढूंढ रही है, और वो यकीनन यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मुझे रह रह कर अपनी गफलत पर अफसोस हो रहा है। मैंने अपने एक दुश्मन को क्यों फरामोश कर दिया। मेरे करीब ही मजीद का कटा हुआ सर और पुराना जिस्म पड़ा हुआ था। मजीद भी मेरा एक मरीद था, जिसको इस बार मैंने अपने जिस्म के लिए मुंतखब किया था। पुलिस लाजमी तौर पर मजीद के कत्ल में मुझे गिरफ्तार करेगी, और वो भी इसी हालत में। क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम ये सर और बकिया जिस्म यहाँ से गायब कर दो? अचानक मैंने हमजाद से सवाल किया। आप जानते हैं कि इन 40 दिनों में खुद मैं भी कतई तौर पर बेकार हो जाता हूँ। अगर ऐसा मुमकिन होता तो कोई बात नहीं थी। हमजाद की फिक्र में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी, और उसके अल्फाज ख़त्म होते ही मेरी समाज से एक भारी आवाज़ टकराई। वो रहा उधर, कोई चीखा और मेरे औसान खता हो गए। खतरा बिल्कुल सर पर पहुंच चुका था। उठो, एक पुलिस वाला गरजा। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैंने नफीस सी जवाब में जवाब दिया। अरे, किसी मुंह के मुंह से बेसाख्ता निकला। गालबन उसकी नज़र मजीद के कटे हुए सर पर पड़ गई। फिर कुछ और पुलिस वाले खंडर में दाखिल हुए। उन्हीं में एक इंस्पेक्टर भी था। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मैं चौंका। वो मेरा शनासा और अकीदतमंद था। आप? वो मुझसे इस हाल में पड़ा देख कर हकलाया, मगर मैं खामोश रहा। कुछ ही देर में मजीद का कटा हुआ सर और बकिया जिस्म वहां से उठवा लिया गया, और जब पुलिस वालों को यकीन हो गया कि वाकई मैं अपने पैरों पर उठकर खड़ा नहीं हो सकता, तो उन्होंने मुझे भी उठवाया और पुलिस के ट्रक में डाल दिया। मजीद का ताल्लुक भी दिल्ली के एक बड़े खानदान से था, इसीलिए पुलिस के आला अफसरान भी वहां मौके पर मौजूद थे। मुझे पहले हवालात में डाल दिया गया और मुझसे पूछगछ शुरू हुई, लेकिन मैंने अब मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी। ये खबर छुपी ना रह सकी कि मैं एक कत्ल के सिलसिले में मुलव्वस होकर गिरफ्तार हो चुका हूँ। दहली में मेरी शख्सियत मामूली लोगों में नहीं थी, बड़े बड़े लोग मेरे मरीदों में थे। उन सब का तांता बध गया था। उन्होंने इंतहाई कोशिश की कि मुझे जमानत पर रिहा करवा लें, मगर मजीद के अहले खानदान भी कम बासोख नहीं थे। नतीजे के तौर पर जमानत भी ना हो सकी। उधर मैंने भी इकबाल जुर्म नहीं किया। पुलिस के आला हकाम अजीब शशोपंज में थे कि करें तो क्या करें। मैं ऐसा गया गुजरा शख्स भी नहीं था कि वो मुझ पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि खुद अफसरान मेरे बहुत से अकीदतमंद थे। दिन गुजरते गए और फिर मुझे हवालात से जेल में मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमा अदालत में पेश हुआ। सारा शहर जैसे इस मुकदमे की कार्रवाई सुनने के लिए उमंड आया था। मेरे एक साहब हसीयत मरीद ने एक बड़ा वकील मेरी पैरवी के लिए खड़ा कर दिया। वो नौजवान और ज़हीन वकील मुझसे भी मिला और हकीकत हाल दरियाफ़त करना चाही। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि किसी भी तरह सिर्फ 18 दिन इस केस का फैसला ना होने दो, क्योंकि इस वक्त 40 दिन पूरे होने में 18 दिन बाकी थे। जब वो वकील मुझसे मिला तो वो मेरी अजीबोगरीब बात सुनकर समझ ना पाया और ये कहकर चला गया कि वो कोशिश करेगा, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सका, और 40 दिन पूरे होने से 9 दिन पहले मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया गया। मुझे अदालत ने फांसी का हुक्म दिया। 40 दिन पूरे होने से सिर्फ एक दिन पहले मुझे फांसी होने वाली थी। जेल में मुझसे मेरे मरीद और मुतकद मिलने आए। मिर्जा मोइन से मैंने सिर्फ इतना कहा कि हाई कोर्ट में फौरन अपील कर दी जाए। फिर 40 दिनों बड़ी बेताबी और अजतराबी के साथ गुजरा। अब मैं अंधेरे का मुंतजिर था, और जब हर तरफ अंधेरा फैल गया तो हमजाद मेरे लिए गुस्ल सेहत की तैयारी करने चला गया। मैं जिस कोठरी में रखा गया था वहां मैं तनहा था। कुछ देर बाद ही हमजाद लौट आया। फिर मैंने गुस्ल करने में देर नहीं की। नई जिंदगी मुबारक हो, हमजाद की आवाज गूंजी, और तुम्हें भी, मैंने जवाबन कहा। अब हमारी मंजिल मथुरा है गालबन। आप वमला से निमटना पसंद करेंगे, हमजाद ने मुझे याद दिलाया। क्यों नहीं, मैंने फौरन बोला। मैं उसे किस तरह भूल सकता हूँ। उसी रात हमजाद मुझे मथुरा ले पहुंचा। पथरीली गलियों से गुजरता हुआ वो एक बड़े से मकान के सामने पहुंचकर रुक गया।
वो मुझसे मखातब करके बोला, हमारे लिए ये बात इंतहाई सूदमंद है कि वो इस वक्त ख्वाब बीदा है और उस पर गफलत में काबू पाया जा सकता है। आपको गालबन वो मंजर अब तक नहीं भूला होगा जब आपने मैं पारा पर फतेह हासिल की थी और वो भी हमें ख्वाब बीदा मिली थी। हाँ, मुझे याद है, लेकिन उस वक्त मैं पारा का मनहूस तसव्वुर नहीं करना चाहता। मैंने जवाब दिया, तुम अपना काम शुरू करो। चंद लम्हे बाद ही वो मकान में दाखिल हो गया, लेकिन जैसे ही हमने उस कमरे में कदम रखा जहां वमला ख्वाबीदा थी, मुझे एक अजीब सी गूंज सुनाई दी और मेरे कान उस आवाज से सुन हो गए। उसी आवाज के साथ अचानक वमला अपने बिस्तर पर एकदम उठकर बैठ गई और मुझे इस तरह देखकर एक लम्हे को उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। आखिर में तुम तक पहुंच ही गया, मैंने उसे मुखातब किया। हाँ, तुम पहुंच तो गए, मगर इस जिस्म को हाथ नहीं लगा सकोगे। वो फुंकारी, इस बार मेरे हाथ मफलूज नहीं है, मैंने जहर कंद के साथ कहा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने देख लिया कि मैं तुम्हारे कमरे में दाखिल होने से किस तरह खुद ब खुद बेदार हो गई। मेरे इल्म में आए बगैर कोई भी मेरी ख्वाब में खौगाह में दाखिल नहीं हो सकता। खैर, इन बातों को छोड़ो, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहती हूँ। बोलो, क्या तुम तैयार हो? वो मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखती हुई बोली, तुम अब इस मंजिल में नहीं हो कि मुझसे कोई सौदा कर सको। ये मैं भी जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम अगर चाहो तो मेरी तमाम पुरस्कार कुव्वतें अपनी पुरस्कार कुव्वत के जरिए सलब कर सकते हो, लेकिन इस सूरत में तुम मेरे जवान और हसीन जिस्म से महरूम हो जाओगे। अगर तुम मुझे अपनाने का वादा करो तो मैं इस पर भी तैयार हो सकती हूँ कि अपने बाप के इंतकाम का ख्याल अपने जहन से निकाल दूं और हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊं। ये नामुमकिन है, कतई नामुमकिन। अगर तुम हकीकतन जिंदगी भर मेरा साथ निभाने पर आमादा हो तो तुम्हें उसके लिए कुछ कुर्बानियां देना होंगी। मैं तुम्हें हासिल करने के लिए हर कुर्बानी देने पर आमादा हूँ। इसकी आवाज में पुख्तगी थी, और फिर मैं ये जानकर सख्त हैरत में पड़ गया कि वो अपना मजहब भी छोड़ने पर आमादा थी, लेकिन पुरस्कार कुव्वतों से दस्तबरदार होने पर वो फौरी तौर पर आमादा ना हुई। कुछ देर की बहस व तकरार के आखिर वो इस पर भी तैयार होगी। मुझे जैसे मेरी खोई हुई जन्नत मिल गई। मैंने हमजाद को इशारा किया। उसने मेरे इशारे पर वमला के गिर्द एक हिसार कायम कर दिया और मुझसे मुखातब हुआ, सुबह तक ये अपनी तमाम कुव्वतों से महरूम हो चुकी होगी। अब चलिए, मैं सुबह आऊँगा और कल तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैंने वमला से कहा, और हमजाद के हमरा वहां से चल दिया। शहर से बाहर एक वीरान सी मस्जिद ने हमने पनाह ली। रास्ते में एक जगह हंगामा खड़ा देखकर मैंने उसकी वजह हमजाद से दरियाफत की। हमजाद ने मुझे बताया कि हिंदुओं और मुसलमानों में बाकायदगा ठन गई है। वो ज़माना था जब पाकिस्तान के क़याम को सिर्फ चंद दिन गुजरे थे और पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट रहे थे। उसी रात मुझे एक और ख्याल आया। मैंने सोचा, क्यों ना मैं भी यहाँ से पाकिस्तान चला जाऊं। हिंदुस्तान में मेरा था भी कौन, सवाई चंद अजियतनाक यादों के। दूसरी जेल से फरार हुआ था और मैं बहरहाल मुजरिम था। मुझ पर 2 कत्ल करने का इल्ज़ाम था। इस तरह मैं पुलिस की दस्तरस से भी बच सकता हूँ। और इस रात मैंने अपने जहन में ये पुख्ता इरादा कर लिया कि वमला को अपने साथ लेकर फौरन पाकिस्तान रवाना हो जाऊंगा। सुबह होते ही हमजाद मुझे वमला के घर ले पहुंचा। मैं अपने साथ उसे भी शहर से बाहर उसी वीरान मस्जिद में ले आया। अब मैं रात होने का इंतजार कर रहा था। मैंने हमजाद से अपने राय का इजहार कर दिया और वमला को भी अपने इरादे से बाखबर कर दिया। उसकी ख्वाहिश थी के बजाय मगरब पाकिस्तान के मशरकी पाकिस्तान के किसी शहर में चला जाए। बंगाल एक बार फिर मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मैंने वमला के ख्याल से इत्तफाक किया और रात होते ही मैंने हमजाद से कहा कि वो हमें ढाका पहुंचा दे। ढाका पहुंचकर सदर घाट के इलाके में मुझे एक बड़ा सा मकान हासिल करने में कोई वक़्त पेश ना आई। वहां पहुंचने के दूसरे ही दिन मैंने वमला के एक मौलाना के हाथ पर इस्लाम कबूल कराया और उसके बाद मैंने उससे निकाह पढ़वाया। वमला खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा दिल बे इंतहा मसरूर था। मेरे लिए कोई नई बात थी, मगर उसके बावजूद मुझे एक अनजानी सी खुशी थी। मैंने जो मकान खरीदा था वो 2 मंजिला था। सरे शाम ही मैं और वमला ने ऊपरी मंजिल का एक कमरा शबे अरूसी के लिए सजाना शुरू कर दिया। फिर मैं किसी काम से मकान के निचले हिस्से में
जाने के लिए जीने की तरफ बढ़ा, लेकिन पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही मुझे जोर का चक्कर सा आया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ गया और मैं सीढ़ियों पर लड़कने लगा। मेरे मुंह से चीखें बुलंद हो रही थीं। चीखें सुनकर वमला मेरी तरफ दौड़ी, मगर उस वक्त तक मैं नीचे पहुंच चुका था और मेरी समात में एक आवाज गूंज उठी और इस कहके को मैं अच्छी तरह पहचानता था। मुझे हमजाद का साया वमला के करीब लहराता हुआ नजर आया। इससे पहले वमला हमला करती हमजाद अपना काम कर चुका था। वमला की लाश को भी ठिकाने लगा आया था। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा जहनी धचका था, मगर मैंने किसी तरह उसे हिम्मत करके भुला दिया और मैंने उस रात फैसला किया कि अब मैं कभी किसी औरत को अपनी हवस का निशाना नहीं बनाऊंगा और अपनी बकिया जिंदगी में उसी पर अमल करूंगा। कुछ दिन में ही मैं फिर मफलूज जिस्म से बेजार हो गया। हर चंद के मैं जब जान चुका था कि मैं पारा मुझे सुकून के साथ जिंदा नहीं रहने देगी और अब मैं जो भी जिस्म हासिल करूंगा वो उसे भी मफलूज कर देगी, मगर उसके बावजूद मैं चाहता था कि किसी न किसी तरह इस अपाहज जिस्म से निजात हासिल कर लूं जिसने मेरी जिंदगी तलख कर दी थी। अब इस जिस्म के साथ मुझे कई साल गुजर चुके थे और अब तक मैं मुझे हमजाद का साया इंतकाम का ख्याल करके जिस्म तब्दील करने से बाज रहा, लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। हमजाद की ताकीद के बावजूद मैं अपनी ख्वाहिश से दामन ना बचा सका। मैंने ये चंद दिन नहायत खामोशी से गुजारे। अब पहली बार मुझसे कोई जुर्म सरजद होने वाला था। मैं अब तक एक दिन भी ये मफलूज जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसका नतीजा कुछ भी होता। आखिर एक दिन तंग आकर मैंने हमजाद से कहा और उसे मेरी ख्वाहिश के सामने सर झुकाना ही पड़ा। नया जिस्म बिल्कुल नोखेज था। वो एक 15 साल का हसीन खूबसूरत लड़का था। हमारे ही पड़ोस में रहता था और कई महीने से उस पर मेरी नज़र थी। वो अक्सर मेरे घर भी आता था। मोहम्मद हाशिम नाम था उसका। बड़ी प्यारी प्यारी और मासूम बातें करता था। तुम जो ये जिस्म अब देख रहे हो, ये उसी का जिस्म है। नए जिस्म से पूरी तरह हम आहंग होकर और 40 दिन सकूनो अत्मीनान से गुजारने के बाद मेरा जी ढाका के भी कहीं और चलने के लिए चाहा। इस बार मेरी मंजिल चाय गाम थी। यहाँ आकर मैंने बज़ाहिर अपनी आमदनी के ज़राए ज़ाहिर करने के लिए तिजारत शुरू कर दी। इस तरह मेरा वक्त भी आसानी से गुजर जाता था। यहाँ मैंने एक बार फिर अपना बिछड़ा हुआ नाम अपना लिया। लोग मुझे शेख करामत ही के नाम से पुकारने लगे। इस तरह एक तवील अरसे बाद मुझे अपना नाम पाकर एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। 5 साल पहले अचानक एक रात मेरे सीने में शदीद दर्द हुआ और मैं रात भर तड़पता रहा। सुबह डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने बताया कि मुझे मैदे का सरतान है। जब मैं डॉक्टर अनवारुल हक के पास से लौट रहा था तो रास्ते में मुझे वही जहरीला कहका सुनाई दिया। मैं पारा का कहका और मैं तड़प कर रह गया। आखिर वो अपने इंतकाम से बाज नहीं आई, लेकिन अब मैं फैसला कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो, अब मैं ये जिस्म नहीं छोड़ूंगा। वक्त तेजी से गुजरता गया और अब मैं 15 दिन पहले मेरी हालत सख्त खराब हो गई। हमजाद के मशवरे पर मैं अस्पताल में दाखिल हो गया और यहाँ आने के 3-4 दिन बाद ही एक शब मैंने हमजाद से एक ऐसी खबर सुनी जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। अब हमारे बिछड़ने में बहुत कम दिन रह गए हैं, हमजाद ने दुख भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ पाया, मैंने उससे हैरत ज़दा होकर कहा। आप अब से 10 दिन बाद मुझे आज़ाद करने के पाबंद हैं। अब से 100 साल पहले किया हुआ अहद याद कीजिए जब आपने मुझ पर काबू पाया था। हमजाद बोला, फिर मैं बगैर तुम्हारे जिंदा रहूंगा? मैंने कहा, अभी तक मुझे हालात की संगीनी का एहसास नहीं हुआ था कि हमजाद की आज़ादी का मतलब कितना भयानक है। काश आप मेरे बगैर जिंदा रह सकते। हम आज़ाद की आवाज़ भर्रा गई। क्यों? आखिर क्यों? आखिर ये क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि मेरे आज़ाद होते ही आपका सर और बकिया जिस्म का राब्ता ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये राब्ता मेरी ही वजह से कायम रहा। हमजाद की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरा दिल डूबने लगा। इससे पहले कभी मैंने अपनी मौत को खुद से
قریب محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے پہلے سمجھا تھا کہ وہ آزاد ہو کر مجھ سے رخصت ہو جائے گا، مگر یہ میری بھول تھی۔ اب سے چند لمحوں بعد وہ میرے جسم میں پناہ حاصل کر کے میری ہی طرح ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو جائے گا۔